السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی ایپیسوڈ نمبر 10۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پیلے رنگ کی مٹی اور تختوں سے بنے ہوئے اس کشادہ مکان کے پھاٹک پر پہنچ گئے، جہاں دو سیاہ آدمی کھڑے تھے۔ بن فرقان نے ان میں سے ایک سے کہا کہ شیخ کو اطلاع دو، بن فرقان آیا ہے۔ وہ شخص اندر دوڑا گیا اور پھر 1 منٹ کے بعد آ کر اس نے کہا کہ شیخ نے انہیں طلب کیا ہے۔ باہر سے یہ مکان زیادہ عمدہ نہ تھا، لیکن اندر سے اسے دیکھ کر آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ صحن تک میں اعلیٰ درجے کے قالین بچھے تھے، دنیا کے عیش و آرام کی ہر شے موجود تھی۔ ملازم کی رہنمائی میں ہم ایک بڑے خوبصورت ہال میں پہنچ گئے، جس کا اس سڑے ہوئے مکان میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، ہال کے ایک آرام دہ صوفے پر عربی لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور مجھے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے عارف کا سہارا لیا، ورنہ میں گر پڑتا۔ یہ شیخ العباس ہے، بن فرقان نے ہمارا تعارف کرایا، لیکن مجھے کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس شیطان کو اچھی طرح پہچانتا تھا جو مجھے دیکھ کر تمسکرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ہاں، وہ شیطان باسدیو تھا۔ میں سکتے کے عالم میں باسدیو کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میری سوچ مفلوج ہو گئی اور میں پاگلوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لوگوں نے میری اس حالت کی طرف توجہ نہیں دی تھی، لیکن باسدیو میری دلی کیفیت سے بخوبی واقف تھا اور اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی شیطانی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ اس کے لیے میری آمد متوقع تھی۔ اور پھر اس نے بھی خود کو مجھ سے نہ چھپایا اور اس نے بن فرقان اور عارف کو نظر انداز کر دیا اور کہا، آؤ شارک جی، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اور اس کے منہ سے میرا نام سن کر عارف اور بن فرقان دونوں چونک پڑے۔ آپ مسٹر شارک سے پہلے سے واقف ہیں شیخ؟ بن فرقان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، شارک جی ہمارے پرانے متر ہیں، مگر بے حد ضدی اور پاگل۔ اور اس نے زہر کھان سے کہا، شہادہ کہاں ہے بوڑھے شیطان؟ اسے میرے حوالے کر دو ورنہ۔ میں نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ورنہ آگے کہو شارک جی، اگر میں نے تمہاری بہن تمہارے حوالے نہ کی تو تم کیا کرو گے؟ وہ بے دستور شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ عارف اس عجیب و غریب گفتگو سے بہت پریشان ہو گیا اور میرا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کیا کر رہے ہیں بھائی جان؟ تمام پروگرام چوپٹ کر دیا آپ نے۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں اور یہ آپ سے کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے؟ تم نہیں جانتے عارف، تم نہیں جانتے۔ یہ وہی شیطان ہے، یہ وہی شیطان ہے جس نے ہمیں اس حال کو پہنچا دیا۔ یہی پلید باسدیو ہے جس نے ہمارے بھرے پورے گلزار کو جہنم بنا دیا۔ عارف، یہ وہی بوڑھا باسدیو ہے جو میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے، میں نے غصے اور نفرت سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اچانک عارف کے چہرے پر جہنم سلگ اٹھا۔ اس کی آنکھیں کبوتر کی طرح سرخ ہو گئیں اور وہ خونی نظروں سے باسدیو کی شکل دیکھ رہا تھا، اور باسدیو کے ہونٹوں پر وہی شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ حیران بن فرقان تھا، اور اس کی سمجھ میں یہ عجیب و غریب ڈرامہ نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ منحوس بوڑھا جس نے ہمیں در بدر کیا ہے۔ عارف کے منہ سے سانپ کی سی پھونکار نکلی، آج یہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ عارف نے پتلون کے پائنچے اونچے کر کے ایک شکاری چاقو نکال لیا اور اسے مٹھی میں دبا کر کسی شکرے کی طرح پر تولنے لگا، اور پھر اس سے قبل کہ بن فرقان اسے روکنے کی کوشش کرتا، عارف نے بجلی کی سی تیزی سے باسدیو پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے چاقو کی نوک باسدیو کے دل کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ باسدیو نے اسے روکنے کے لیے نہ تو اپنے ہاتھ ہلائے اور نہ اپنی پوزیشن میں تبدیلی کی۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا اور عارف اس کے بدن میں سے گزر کر دوسری طرف دیوار سے جا ٹکرایا۔ ایسے لگتا تھا جیسے باسدیو دھویں کا کوئی تصویر ہو اور جس میں سے گزرنا مشکل نہ ہو۔ عارف کے چاقو کی نوک دیوار سے ٹکرا کر خراب ہو گئی۔ بے مشکل تمام وہ اپنا ہاتھ زخمی ہونے سے بچا سکا تھا۔
और फिर वो जूं ही पलटा, ना जाने कहाँ से एक फौलादी जंजीर उसके हाथों में आ पड़ी और फिर किसी गैर मरी हाथ ने उसके चाकू वाले हाथ को झटका दिया और चाकू उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर पड़ा। आरफ ने घबराए हुए अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों पांव भी जकड़े गए और उसके साथ ही बासिदियों का शैतानी कहकर गूंज उठा, लड़ाई हमारी और शारक जी की है बालक, तो हमारे दरमियान क्यों आ गया है? शारक जी जानते हैं कि हमें इनके अलावा उनके खानदान के किसी मनुष्य के जीवन से दिलचस्पी नहीं है। अब तू भी अपना जीवन खोने हमारे सामने आ गया है तो हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और उसकी मुस्कुराहट सिमट गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बासिदियो आरफ की जिंदगी के दर पे था और उस मनहूस को कोई नहीं रोक सकता था। आरफ मेरा भाई, मेरा वाहिद सहारा, मैं उसे मरने नहीं देना चाहता था। मैंने बासिदियो का चेहरा देखा और उसकी चमकदार आंखें आरफ पर जमी हुई थीं। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और अचानक दरवाजे के कवाड़ आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। देखते ही देखते कवाड़ पूरे खुल गए और फिर एक स्याह नाग की फुंकार सुनाई दी। दूसरे लम्हे बिन फुरकान के हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकली और वो उछलकर एक तरफ हट गया। मैं भी जान बचाने के लिए फितरी जज्बे से मगलूब होकर उस स्याह रंग के रास्ते से हट गया जो गैस के आलम में फुंकारता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। उसका रुख आरफ की तरफ था और मेरी निगाहों में आरफ का अंजाम घूम गया। चश्मे तसव्वुर से मैंने आरफ के जिस्म को नीला होते हुए देखा और मेरे हलक से एक दिलखराश चीख निकल गई। दूसरे लम्हे मैंने सांप पर छलांग लगा दी, लेकिन काम वक्त सांप मुझसे भी फुर्तीला निकला और इससे कबल की मौत पर जा गिरतला। उसने अपना जिस्म समेटा और कुंडली मारकर खड़ा हो गया। आरफ फटी फटी नज़रों से मेरे उस जज्बे मोहब्बत को देख रहा था। मैं सांप के सामने खड़ा था और उस पर दूसरा हमला करने के लिए तैयार था। इसके रास्ते से हट जाओ शारक, वरना तुम्हें भी ना छोड़ेगा। बासिदियों की गुस्सीली आवाज़ गूंजी। ये मेरी मौत के बाद ही आरफ को डांट सकता है, मैंने सांप पर झपटते हुए कहा, मगर यह मेरा दूसरा वार भी खाली गया। लेकिन सांप ने खिलाफे तवक्का मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि पीछे हटकर खड़ा हो गया था। तुम मुझसे आरफ की ज़िंदगी का सौदा कर सकते हो, बोलो। अगर तुम मुझसे बात करना मंजूर करो तो आरफ की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। सांप को वापस कर दो, मैं तुमसे गुफ्तगू करूँगा। मैं न जाने किस जज्बे के तहत कहा और बासिदियों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने सांप की तरफ रुक करके कहा कि जा अघोरी, गोवर्धना और धूमी को भेज दे, वो इन दोनों को ले जाकर बंद कर दें। बासिदियों ने सांप की तरफ रुक करके कहा और सांप खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरा सांस धुकनी की तरह चल रहा था। आरफ की ज़िंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ थी। मैं उसे बासिदियों की भींट नहीं चढ़ने देना चाहता था। अभी शाम को गए हुए पूरा मिनट भी न गुजरा था कि दो स्याह फाम नंग दड़ंग हैबतनाक इंसान अंदर दाखिल हो गए और उनकी आंखें सुर्ख थीं और जिस्मों से बदबू उठ रही थी। और उनमें से एक ने आरफ का हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने बिन फुरकान का। बिन फुरकान के होश भी गुम हो गए थे और इस अजीबोगरीब ड्रामे ने उसकी सोचने समझने की कुव्वत मफलूज कर दी और उसकी खौनख्वारी ना जाने कहाँ से हो गई थी। वो खामोशी से उनके साथ चला गया और बदहैबत शक्ल वाले आरफ को भी बाहर ले गए। अब कमरे में बासिदियों और मैं तन्हा रह गए। बासिदियों अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था और फिर उसने मुझे बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी सोफे पर बैठ गया। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद वो बोला, शारक बाबू, क्यों अपना कटम को तबाह कर रहे हो? तुम मेरी शक्ति देख चुके हो, तुम अंदाज़ा लगा चुके हो कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ। फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? तुम बताओ, तुम्हें मेरा मामूली सा काम करने में इतनी ज़िद क्यों है? मैं तुम्हें इस मामूली काम के बदले कैसी कैसी कुव्वतें दे रहा हूँ। तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। भगवान ने मनुष्य को संसार में इसीलिए भेजा है कि वो संसार की सारी खुशियाँ अपनी झोली में भर ले। पूरे संसार के मनुष्य खुश रहने के लिए कैसे कैसे जतन करते हैं। एक तुम हो कि अपनी ज़िद के आगे संसार को लात मार रहे हो, दुख पर दुख उठा रहे हो, मगर तुम्हारे होश दुरुस्त नहीं हुए। आखिर क्यों? मुझे उसका कारण बताओ। तुम मेरा इतना सा काम करने से क्यों हचकिचा रहे हो? क्या तुम्हें उस मस्जिद के बारे में कुछ मालूम है? मैं चौंक पड़ा और पहली बार बासिदियों ने मुझसे ऐसी कोई बात कही थी और इससे कबल तो वह सिर्फ अपनी रट लगाए रहता था और ना जाने क्यों मुझे उससे ज़िद हो गई थी। ये हकीकत थी कि मुझे नहीं मालूम था कि बासिदियों उस मस्जिद में क्यों दाखिल होना चाहता था।
मुझे ये इल्म था कि मेरे अलावा और कोई उसे मस्जिद में नहीं ले जा सकता, मगर क्यों? इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। अगर कोई मुसलमान ही ये काम कर सकता था तो दूसरे लोग भी तो थे जो उसके लालच में आ सकते थे, और मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात थी? ये तमाम बातें सोचने का आज तक मुझे मौका नहीं मिला था। और इस वक्त बासिदियों ने यह सवाल किया तो ये तमाम बातें मेरे जहन में उभर आईं और मैं उन पर गौर करने लगा, लेकिन उनका कोई हल मेरे पास ना था। चुनाचा मैंने बासिदियों से ही उसके बारे में मालूम करने का फैसला कर लिया। मुझे कुछ नहीं मालूम, अगर तुम मुझको सब कुछ बताओ तो मैं गौर कर सकता हूँ। मैंने बासिदियों के सवाल का जवाब दिया। नहीं, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं तुमसे सिर्फ ये कह सकता हूँ कि तुम मेरा काम कर दो और सुख की नींद सो। तेरा भाई, तेरी बहन तुझे मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ मैं तुझे ऐसी कुव्वतें दूंगा कि तू संसार का बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ख्वाह वो जायज़ हो या नाजायज़। तो जिसकी तरफ देखेगा वो तेरा गुलाम हो जाएगा, और जब तू उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो इससे ज़्यादा जानने की कोशिश भी मत कर। मैं सब कुछ जाने बगैर तुम्हारा काम नहीं कर सकता। मैंने कहा, फिर वही जिद। मैं कहता हूँ कि अपनी हट से बात आ जा। बासिदियों गुस्सीले अंदाज में बोला, तुम जानते हो कि मैंने इस जिद पर अपना पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया है और दुनिया का बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त किया है। अब सिर्फ मेरा भाई और बहन रह गए हैं। अगर ये भी मुझसे छिन गए तो मैं इनके सदमे को भी बर्दाश्त कर लूँगा, मगर इसके बारे में जाने बगैर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। अभी तेरे भाग में और घटनाएं लिखी हैं, मेरा क्या है, इन्हें भी भूग। बासिदियों ने होंठ कोड़ कर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जब तक तुम मुझे उसके बारे में तफसील नहीं बताओगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा, और बासिदियों मुझे घूरने लगा। काफ़ी देर तक वो खामोश रहा और फिर गर्दन हिलाकर उठते हुए बोला, अच्छा शारक बाबू, फिर कुछ और तमाशा देखो। मैं तुझे इस जगह जाने का कारण तो नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा ना होगा। तो बहुत सी बातों से वाकिफ हो जाएगा। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, एक तवील इंतज़ार। ये इंतज़ार कुछ और तवील सही, मैं तुझे मजबूर कर दूंगा कि तू सिर्फ मेरे बारे में सोचे और खलूस से मेरा काम करने पर राज़ी हो जाए। बिन बालक, तेरी बहन मेरे पास है और मेरी कैद में उसे वैश्या बनाऊंगा, और मैं तुझे ऐसी अज़ियतें दूंगा कि तेरा हर वे दर्द से तड़बड़ा उठेगा, और फिर तू गुरुदेव कहता हुआ मेरे चरणों में आ गिरेगा। और उस वक़्त भी अगर तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। जा, अब तू भी अपने साथियों के पास जा। बासिदियों ने कहा और दोनों हाथों से ताली बजाई। वही गंदे गुलाम अंदर आ गए और उन्होंने मेरे दोनों बाजू पकड़ लिए। वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए और फिर एक तारीक कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धकेल लिया गया। अंदर भी गहरी तारीकी और घुटन थी, और मैंने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और उसी वक्त मुझे एक कोने से आवाज़ सुनाई दी, कौन है? आरफ की आवाज़ को मैं पहचान गया और मैं हूँ आरफ, मैंने कहा, और आरफ आवाज़ के सहारे मेरे करीब पहुँच गया। बिन फुरकान कहाँ है? मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, यही है, वो बहुत बिगड़ रहा है कि हमने उसे हालात से बेखबर रखा और यहाँ ला फंसाया। आरफ ने जवाब दिया। मैंने कुछ न कहा और हम दोनों बिन फुरकान के करीब पहुंच गए। क्या सोच रहे हो बिन फुरकान? मैंने नरमी से कहा। गो उस शख्स के लिए मेरे और आरफ के दिल में सख्त नफरत थी। ये स्याह दिल इंसान बेगुनाह और मासूम बच्चियों को उनके वालिदैन और दूसरे इज्जा से दूर करके उन्हें वैश्यों के हाथों फरोख्त कर देता था। उस पर ज़रा बराबर रहम खाना भी गुनाह अजीम था, लेकिन हमने खुद को काबू में रखा। हम जिस मुसीबत में भरे दौर से गुजर रहे थे उसमें हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना था। बिन फुरकान से हमने उन बेगुनाह लड़कियों का इंतकाम जरूर लेना चाहते थे, लेकिन किसी मुनासिब मौका पर। अभी तो हम खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे। बकवास मत करो, और तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम किसी जादूगर के चक्कर में फंसे हुए हो। बिन फुरकान गुराया। इसके बारे में तो हमें भी नहीं मालूम था बिन फुरकान। तुमने हमें खुद शेख अल अब्बास का पता बताया है। तुम खुद हमें यहाँ लाए थे, और मुझे भी नहीं मालूम था कि अल अब्बास जादूगर भी है। मैं तो उसे बहुत अरसे से जानता हूँ। खैर, हमें तो अपनी बहन की तलाश है। अब बताओ कि इसके बारे में क्या करें। जहन्नम में गई तुम्हारी बहन, उस वालदुल खबीस ने मेरी दोस्ती का ख्याल भी ना किया। मैं उसे देख लूँगा, बिन फुरकान ने कहा, और मैं खामोश हो गया। बिन फुरकान की ख्वान ख्वार फितरत ऊद कर आई थी। बहरहाल अभी हमें उसे काम लेना था, इसलिए हम बिल्कुल खामोश रहे।
अब मेरी आंखें भी तारीकी की आदी हो गई थी और इसलिए बिन फुरकान और आरफ के हयोले देख सकता था। काफ़ी देर तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर बिन फुरकान कुछ बड़बड़ाने लगा और फिर हमसे बोला, अगर तुम आज़ाद हो गए तो फिर अपनी बहन के लिए क्या करोगे? उसे तलाश करते रहेंगे बिन फुरकान। हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मुझे तुम्हारी रकम वापस करनी पड़ेगी। उसने कहा, ओहो, रकम की फिक्र मत करो, हमें सिर्फ अपनी बहन की ज़रूरत है। हम उसे 10 गुनी रकम खर्च कर सकते हैं, बस हमारी बहन मिल जाए। आरफ ने कहा और बिन फुरकान किसी गहरी सोच में गुम हो गया और फिर चंद मिनट के बाद बोला, मैं इस कबीस शेख से तुम्हारी बहन के बारे में ज़रूर मालूम करूंगा। और सुनो, अगर तुम्हारे सामने अपनी बहन को तलाश करने का कोई प्रोग्राम नहीं है तो तुम ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पूरी दुनिया में मेरे आदमी फैले हुए हैं, वो उसे तलाश करेंगे और जहां भी मिल गई उसे ले आएंगे। अगर तुम चाहो तो उस वक्त तक मेरे साथ भी रह सकते हो जब तक तुम्हारी बहन ना मिल जाए। हमें मंजूर है बिन फुरकान। आरफ जल्दी से बोल पड़ा और दर हकीकत ये थी कि स्कीमें बनाने में आरफ मुझसे तेज था। न जाने क्या सोचकर उसने बिन फुरकान की ये बात कबूल कर ली। थोड़ा सा अंधेरा और फैले जाने दो, उसके बाद हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, बिन फुरकान ने कहा। किस तरह? मेरा नाम बिन फुरकान है। अल अब्बास ने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। ये दुश्मनी उसे किसी कदर महंगी पड़ेगी। तुम देख लोगे कि वो अगर जादूगर है तो उसका जादू मेरे ऊपर नहीं चलेगा। मैंने बड़े बड़े जादूगरों को ठिकाने लगाया है, बिन फुरकान ने अकड़ कर कहा और हम खामोश हो गए। वक्त गुजरता रहा। बिन फुरकान की वजह से हम दोनों किसी खास मौजू पर गुफ्तगू भी ना कर सकते थे। ना जाने कितनी रात गुजर गई। तब बिन फुरकान अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हम तारीकी में उसका साया ही देख सके थे। कई मिनट तक दरवाजे से हल्की हल्की आवाज़ें निकलती रही और फिर रोशनी की एक किरण अंदर रेंग आई और उसके साथ ही हवा का झोंका भी। और कई घंटे के बाद उस तकलीफदा घुटन से निजात मिली जिसके अब हम आदी होते जा रहे थे। बिन फुरकान ने दरवाज़ा खोला और फिर उसने सरगोशी के अंदाज में हमें आवाज़ दी और हम दोनों जल्दी से उसके करीब पहुंच गए। आओ, उसने कहा और हम तीनों बाहर निकल आए। बिन फुरकान चौंका। पहले भी इस इमारत में आ चुका था, इसलिए उसके बारे में अच्छी तरह जानता था। और कई रास्तों से गुजरने के बाद हम उस जाने पहचाने हिस्से में पहुंच गए जहां बिन फुरकान के साथ आए थे और उन कमरे में रोशनी थी जहां बासिदों से मुलाकात हुई थी। बिन फुरकान ने दरवाजे को थोड़ा सा धकेला और फिर खुश होकर गर्दन हिलाई और उसके बाद हमें इशारा करके अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक खूबसूरत मसहरी पर शेख अल अब्बास सो रहा था। ये बेअल्फाज देगर बासिदो, लेकिन उसके वक़्त उसके चेहरे पर शैतानियत नहीं बल्कि सादगी थी। वो सोते में एक आम इंसान मालूम होता था। और दूसरे लम्हे बिन फुरकान ने एक लंबा खंजर निकाल लिया और अल अब्बास की मसहरी में एक ज़ोरदार ठोकर मारी। अल अब्बास बुरी तरह उछल पड़ा और फिर जाकर आंखें फाड़ने लगा। दूसरे लम्हे वो मसहरी पर उठकर बैठ गया। वो खौफज़दा नज़रों से बिन फुरकान और उसके हाथ में दबे हुए खंजर को देख रहा था। और फिर उसके मुंह से सहमी सहमी आवाज़ निकली, बिन फुरकान, ये तुम हो? मेरे खुदा, और तुम इस हालत में यहाँ कैसे आए? उधार चुकाने जादूगर शेख और उन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी थी तो तुमने बिन फुरकान का भी ख्याल ना किया। बिन फुरकान ने खंजर चमकाते हुए कहा, क्या कह रहे हो अजीज़, क्या कह रहे हो? ज़रूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो 3 दिन से जजीरे से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। बेवकूफ़ बना रहा है नाहंजार। तेरा ख्याल है कि तो अपनी चालाकी से एक बार फिर मुझे अहमक बनाएगा। बिन फुरकान ने दांत पीसते हुए कहा, यकीन करो बिन फुरकान, ना जाने क्यों तुम मेरी तरफ से गलतफहमी का शिकार हो गए हो। अल अब्बास रूहांसा हो गया था और मेरे जहन में नए ख्यालात जन्म ले रहे थे। बूढ़े शैतान से कुछ बाइद ना था। मुमकिन है कि इस वक्त वो इस शेख के भेस में हो और अब ये असल शेख हो। चुनाचा मैंने बिन फुरकान से पूछा, इससे शाहदा के बारे में मालूम करो। बताओ, वो लड़की कहाँ है जिसे आखिरी बार तुमने मुझसे खरीदा था? शाहदा? हाँ, मैंने खरीदी थी। बड़ी मगरूर लड़की थी। एक रात भी मेरे साथ न सोई। हालांकि मैंने उसके जिस्म से खाल उधेड़ दी, लेकिन उसने मेरा कहा ना माना और उसी दौरान मुर्शद आ गए और उन्होंने मुझसे वो लड़की मांग ली। यकीन करो बिन फुरकान, मगर क्या बात है, तुम उसे क्यों पूछ रहे हो? शाहदा के बारे में उस जलील इंसान से सुनकर मेरा खून खौल गया और मैं दीवानावार आगे बढ़ आया। तूने उसके जिस्म से खाल उधेड़ दी थी, तूने? मैंने लड़ते हुए कहा, बता अब वो कहाँ है, वरना मैं तेरे पूरे जिस्म से खाल उधेड़ दूंगा। और अचानक मैंने बिन फुरकान के हाथ से खंजर झपट लिया।
मेरी स्फूर्ति पर बिन फुरकान हैरान रह गया था। बहरहाल उसने इस मामले में मुदाखलत ना की और कदरे पीछे हट गया। ये क्या तमाशा है बिन फुरकान, मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त के साथ ये सलूक हो रहा है और तुम खामोश देख रहे हो। ये कौन लोग हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? तूने भी तो मुझे अपने स्याह गुलामों के जरिए कैद करा दिया था। अल अब्बास, तूने भी तो अपनी जादूगरी मुझ पर आजमाई थी। ये लोग अपनी बहन शाहदा की तलाश में आए हैं। पहले हम तुझसे कोई बाइज्जत समझौता कर सकते थे, लेकिन तूने समझौते के रास्ते बंद कर दिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अल अब्बास ने दोनों हाथों से सर के बाल नोचते हुए कहा, शाहदा कहाँ है? और तुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, तू सिर्फ हमारी बात का जवाब दे। आरिफ ने आगे बढ़कर अल अब्बास के जबड़े पर घौंसा रसीद करते हुए कहा। अल अब्बास की आंखों में गैज के आसार नजर आए, लेकिन मैंने खंजर की नोक उसके हलकों पर रख दी और वो संभल गया। मैं बता चुका हूँ, उसने भराई हुई आवाज में कहा। मैंने उसे मुर्शिद को दे दिया था। मुर्शिद उसे लेकर अलबदूरा गए थे। यकीनन वो अलबदूरा की हरम में होगी। उसने कहा, मुर्शिद कौन है? मैंने कड़ कर पूछा। एक वली कामल। उन्होंने कहा था कि वो लड़की उनके काम की है और वो लड़की के भाई से कोई काम लेना चाहते हैं। शेख अल अब्बास ने कहा और मेरे कान खड़े हो गए। ज़ाहिर है कि ये मुर्शिद उस खबीस के अलावा और कौन हो सकता था जिसने ना जाने कहां कहां से अपने पांव फैला रखे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ख्याल होता था कि मुमकिन है अल अब्बास के रूप में छुपे हुए बासदियों ने अब ये कोई नई चाल चली हो। अलबदूरा कहाँ है? मैंने गैज़ो गज़म में कांपते हुए कहा। जजीरा अलबदूरा यहाँ से 160 मील दूर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मुर्शिद वहाँ मौजूद हों। वो सैलानी आदमी हैं और फिर ज़मीन उनके लिए मुख्तसर है। लम्हात में वो लाखों मील का सफ़र करते हैं। ये कौन से मुर्शिद की बात करता है मिस्टर शारक? मैं इस चालाक इंसान को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम उसकी बातों में आ रहे हो? तुम्हें याद नहीं उसने किस चालाकी से हम लोगों को कैद कर दिया था? जो शख्स दोस्तों को कैद कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता? बिन फुरकान ने कहा और अल अब्बास हैरत से बिन फुरकान की शक्ल देखने लगा और फिर लरजते हुए लहजे में बोला, ये तुम कह रहे हो बिन फुरकान मेरे दोस्त? मैं तुम्हारी दोस्ती पर लानत भेजता हूँ जो वक़्त के साथ बदलती है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता कि मैं तुम्हारे मकान में कैद रहा हूँ। तुम्हें ज़रूर गलतफहमी हुई है बिन फुरकान, मुझे माफ़ कर दो और ठंडे दिल से हालात पर गौर करके मेरी दोस्ती के बारे में फ़ैसला करो। अल अब्बास ने कहा और बिन फुरकान मकारी से उसे देखने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो फिर दोस्ती के सबूत पर उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। मैं उसके इवज़ तुम्हें दूसरी लड़की दे सकता हूँ। अगर वो मेरे पास होती तो मैं तुम्हें बिला इवज़ लिए हुए वापस कर देता, या अगर वो यहाँ निकल आए तो तुम मेरी दोस्ती को ठुकरा सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ। मुर्शिद ने उसे पसंद किया और वो ले गए। बिन फुरकान ने एक मैंने किए सांस ली और फिर मेरी तरफ रुक करके बोला, बहरहाल मिस्टर शारक, अगर ये दुरुस्त भी कह रहा है तो लड़की की तलाश के लिए इसकी मौत ज़रूरी है, वरना ये बकौल इसके अपने मुर्शिद को भी हमारे बारे में इतला कर देगा और मुर्शिद इंतज़ाम कर लेंगे। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि जजीरा आधे से ज़्यादा उसकी मलकियत है। अगर हम इसे ज़िंदा छोड़ते हैं तो फिर हम ये जजीरा कभी ना छोड़ सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं इस इलाके में अपना कारोबार भी जारी रखना चाहता हूँ और इन चंद बातों को सामने रखते हुए ये ज़रूरी है कि हम इसे मौत के रास्ते पर रवाना कर दें और फिर लड़की को यहाँ तलाश करें। क्या कह रहे हो बिन फुरकान? क्या बरसों की दोस्ती का यही सिला मिल रहा है? अल अब्बास ने कहा, लेकिन कीना परवर बिन फुरकान बेदर्दी से हंसने लगा। ज़ाहिर है कि वह बर्दा फरोश था और जिस संग दिल के साथ दिल पर मासूम कलियों की आहें, सिसकियाँ और फरियादें असर ना करती हों, वो एक बूढ़े उम्र रसीदा शेख की दोस्ती का वास्ता कैसे कबूल कर सकता था? और मैंने उसके रवैये से उसकी शख्सियत के बारे में मुकम्मल अंदाज़ा लगा लिया। मैं समझ गया था कि बिन फुरकान सिर्फ दौलत का दोस्त है और वो दौलत के ज़रिए बेहतरीन दोस्त रह सकता है, और जहाँ कोई चीज़ उसके मफाद के आड़े आई वो सब भूल जाता है। बहरहाल मुझे उससे मोहतात रहना था। बिन फुरकान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसने खंजर मेरे हाथ से ले लिया। शेख अल अब्बास के चेहरे पर खौफ के आसार गहरे होते गए और फिर उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन बिन फुरकान ने किसी चीते की तरह झपट कर उसको दबोच लिया और फिर उसका चमकदार खंजर अल अब्बास के सीने में उतर गया। अल अब्बास की चीख बिन फुरकान की उंगलियों में दब गई। खंजर कई बार बुलंद हुआ और कीमती कालीन में कुछ और खुश रंग नक्शो निगार बन गए।
बिन फुरकान ने उसे धकेल दिया और फिर उसके जिस्म से खंजर साफ करके पेटी में उड़स लिया और मेरी तरफ रुख करके बोला, आओ, इस छोटी सी कोठी की तलाशी मुकम्मल काम नहीं है। तलाशी लेने के बाद हम सीधे बंदरगाह चलेंगे और रातों रात यहाँ से रवाना हो जाएंगे। दिन की रोशनी हमारे लिए खतरनाक है। मैंने कुछ न कहा। आरफ भी खामोश था और वैसे हम बिन फुरकान जैसे दरिंदे से भी खौफजदा नहीं थे, बल्कि हम दोनों ही के दिलों में शाहदा का गम मुअज्जन था। ना जाने वो बदनसीब किस हाल में होगी। तलाश बेकार ही रही। शाहदा वहाँ ना थी। हम वापस चल पड़े। बिन फुरकान के आदमी बेफिक्री से खैमों में आराम कर रहे थे। बिन फुरकान के फौरी तौर हुक्म ने उन्हें बदहवास कर दिया और वो जल्दी जल्दी रवानगी के लिए तैयार हो गए और थोड़ी देर के बाद लांच ने साहल छोड़ दिया। बिन फुरकान अपने आदमियों में मसरूफ हो गया था और उसकी लाई हुई लड़कियां बेदस्तूर उसकी कैद में थी। हमारे दिल गम से न ढाल थे। आसमान पर चांद निकला हुआ था और हम दोनों लांच के एक हिस्से में खामोश खड़े थे। जब खामोशी तवील हो गई तो मैंने आरफ को मुखातब किया, क्या सोच रहे हो आरफ? सोच रहा हूँ भाईजान कि खुदा ने हमारी खुशियाँ एक शैतान के हाथों में क्यों दे दी। वो हमारी किस्मत का मालिक क्यों बन बैठा है। हमारे खानदान की बर्बादी अगर खुदा की तरफ से होती तो हमें गम ना होता, लेकिन कोई शैतानी कुव्वतों का अमल हमारे खानदान को इस कदर जलील कर रहा है। आखिर क्यों? आरफ की आंखों में आंसू डुबडुबाने लगे। खुदा की मसरत वही समझ सकता है आरफ, ये इम्तहान है। दुआ करो कि हम इस इम्तिहान में साबित कदम रहें। वही मनहूस मुझे बड़ी बड़ी कुव्वतें देने का वादा करता है और मैं भी मसाइब से तंग आकर दुनिया के फ्रेम में आ सकता हूँ, लेकिन मुझे उस कुव्वत की जरूरत नहीं जो इंसान की बख्शी हुई हो। मुझे तो सिर्फ खुदा का इंसाफ चाहिए। शैतानी कुव्वतों का मुझे क्या करना है? लेकिन उस मस्जिद में क्या है भाईजान? ऐसी कौन सी बात है उसमें? और वहां जाकर उस शैतान की कुव्वत मफलूज क्यों हो जाती है? मुझे नहीं मालूम आरफ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। क्यों ना यहाँ चलकर देखा जाए? और उस नए ख्याल से मैं चौंक पड़ा। ये ख्याल आज तक मेरे जहन में नहीं आया था। आरफ की बात पर मैं गौर करने लगा और काफ़ी देर तक उसे कोई जवाब ना दे सका। और उस वक़्त आरफ ने फिर कहा, बिन फुरकान के बारे में क्या ख्याल है भाईजान? क्या मतलब? उसकी पेशकश पर आपने गौर किया? हाँ, उस पर भी गौर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आरफ वो अहमक है। ये कोई इंसानी मसला नहीं है कि बिन फुरकान के जरिए उसे हल किया जाए। उसके साथी शाहदा को क्या तलाश कर सकेंगे? दूसरे वो किसी किस्म का आदमी है, उसे तुम जानते हो, और उसके साथ रहना खतरनाक है। दरअसल वो हमसे ली हुई रकम के एवज कुछ करना चाहता है ताकि हम उससे रकम वापस ना मांगे। शाहदा मिले ना मिले और उससे उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है भाईजान, आरफ ने अजीब से अंदाज में कहा। ऐरान चलकर हम उसे छोड़ देंगे, मैंने कहा, और आरफ पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। वक़्त गुजरता रहा। लांच तेजी से सफ़र कर रही थी। काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद हम थक गए और वहाँ से हट आए और फिर एक मुनासिब जगह देखकर लेट गए और ना जाने किन ख्यालों के हजूम में कब नींद आ गई। सूरज की किरणों ने हमें जगाया। लांच पर फिर भाग दौड़ हो रही थी। हम दोनों मुंह हाथ धोकर कैबिन की तरफ चल दिए और बिन फुरकान वहाँ मौजूद था। आओ भाई, मैं नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मजबूरन नाश्ता कर लिया और फिर उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और हमारे लिए नाश्ता ले आया। खुशकिस्मती से हम बगैर किसी खतरे के साहल तक पहुंच गए। अब चंद घंटों का सफ़र बाकी है। ऐरान में हम 8 दिन क़याम करेंगे। वहीं रहकर मैं याददाश्त के सहारे तुम्हारी बहन की तस्वीर अपने आदमियों को पहुंचा दूंगा और वो उसकी तलाश शुरू कर देंगे। हाँ, कुछ रकम और खर्च हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि तुम उसका बंदोबस्त कर सकते हो। हम सब बंदोबस्त कर देंगे बिन फुरकान, आरफ ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा और बिन फुरकान गर्दन हिलाने लगा। ऐरान के एक वीरान साहल पर हमारी लांच रुकी और यहाँ भी बिन फुरकान के आदमियों ने उसका इस्तकबाल किया और हम सब को एक खूबसूरत इमारत में पहुँचा दिया गया जो सरसब्ज़ दरख्तों से घिरी हुई थी, और लड़कियों को भी हमारे साथ ही लाया गया था। वो बेज़बान सख्ते की सही कफियत में थी और कुछ ना बोलती थी। मुझे उनकी हालत देखकर रंज होता था, लेकिन मैं शैतान बिन फुरकान के मुकाबले में क्या कर सकता था। लेकिन ये मेरी सोच थी। आरफ मुझसे मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा था। चुनाचा दोपहर के पुरतकल्लफ खाने के बाद उसने कहा, अगर हमने ताखीर की भाईजान तो आज रात या कल इन लड़कियों का सौदा हो जाएगा और फिर ये मासूम अपने वालिदैन से कभी ना मिल सकेंगी। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि बिन फुरकान की सोहबत में हमें काफ़ी वक्त गुजर चुका है
اب ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ان لڑکیوں کو اس کی قید سے رہائی بھی دلوانا ضروری ہے۔ مگر کیسے؟ میں نے پوچھا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی بندوبست کر لیتا ہوں، عارف نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھہرو، میں بھی چلتا ہوں، ہم شیر کی کھچار میں ہیں اور میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں نے کہا اور عارف کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ باہر نکل کر ایک آدمی سے ہم نے بن فرقان کے بارے میں پوچھا۔ شیخ آرام کر رہا ہے، اس نے بتایا اور اس کے کمرے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ ہم دونوں اس طرف بڑھ گئے تھے اور بن فرقان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے اسے دھکیلا اور وہ کھل گیا۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ بن فرقان ایک آرام دہ کوچ پر دراز تھا اور شاید نیم غنودگی کے عالم میں تھا، اور ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھیں کھول دی اور خشک لہجے میں بولا، کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں آرام کر رہا ہوں؟ آرام کے وقت میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا اور یوں بھی رات بھر جاگتا رہا ہوں۔ ایک ضروری کام تھا بن فرقان، عارف نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور بن فرقان برا سا منہ بنا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کوچ پر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا اور عجیب سی نظروں سے ہمیں گھورنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عارف کیا کرنا چاہتا ہے، چنانچہ میں خاموش ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ہم تم سے ان تینوں لڑکیوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں بن فرقان، جنہیں تم افغانستان سے لائے ہو۔ کیسی گفتگو؟ انہیں آزاد کر دو، اور یوں بھی تم نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کر چکے ہو، نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ تم نے بجھائے ہیں۔ مزید بربادی کی اجازت تمہیں نہیں دی جا سکتی، عارف نے کہا اور میں ہوشیار ہو گیا۔ عارف کے الفاظ میں خون کی مہکار تھی، اور پھر میں بھی جانتا تھا کہ بن فرقان سے اس گفتگو کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ وہی ہوا۔ بن فرقان کی آنکھیں خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیا فضول بکواس لگا رکھی ہے؟ وہ گھڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اب ہم دنیا کو تمہارے مظالم سے نجات دلانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ تمہاری زندگی اب غیر مناسب ہے، بن فرقان نے کہا عارف نے کہا، اور بن فرقان تیش کی عالم میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے خنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا جو تھوڑے فاصلے پر رکھا تھا۔